Okay, so let's pay attention, all of you. So we'll start with geometry today. Now, unlike other chapters, this is slightly theoretical in the sense that there are a lot of, theorems, and there are a lot of statements, there are a lot of properties that we have to remember, because those questions that you will be able to solve would require you to have understanding of those properties. And generally, if you look at these questions in CAT and other exams, every question will comprise of 2 or 3 properties at least in a question. In a more easier level examination, the questions are based on single concept or single property. When you want to increase the complexity of the question or the difficulty of the question, in single question you have multiple properties that needs to be applied simultaneously, and therefore knowing characteristics and properties of different figures becomes of paramount importance. And to that extent, yes, in this particular case, in this particular chapter, we will have to remember and memorize few things. Now normally in arithmetic we have seen that I have been saying कि भाई इसको नहीं याद करते, ऐसा फॉर्मूला नहीं करते, हम लॉजिक से कर लेंगे या इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लेंगे. But in this case, we will have to remember few things because we will not be deriving all those characteristics in the examination. Of course, to understand, we may do certain derivations here, but that is only for our understanding. Examinations will not require you to do that, but they will certainly require you to have a thorough understanding and recall of that particular characteristics or the properties. So that's what we are going to do today. Basically, this chapter is about what we call as a plane geometry. Now, plane geometry means a 2-dimensional geometry. Okay. So we are basically talking about plane geometry. रजनीश वो कोई आना है किसी बच्चे ने? 2 बच्चे बैठे हुए. हाँ ठीक है. So we are going to basically study plane geometry. So how many of you are comfortable with geometry, by the way? Raise your hands. 1. Nobody? हाँ जी, online? Okay, Dhruv. So you are. Anybody else? Suman, Arul, Nishu, Soumya, Bharat. Namaskar. Okay. Okay. So those who are comfortable will have to have some patience, because it could be repetition for you, but then I'm going to take up from very, very elementary level. So we'll start with understanding of what is plane and what is the most elementary thing in a geometry, without which geometry would not exist. Angle. Anything which is more fundamental than angle? Line. Anything which is more fundamental than line is a point. So the most elementary entity in a geometry for us is what you call as a point. So how do we define point? जिसका क्या होता है? कुछ भी मतलब एक ऐसी चीज जिसका डायमीटर इनफाइनाइट है, सिंपली स्मॉल होता है. हम उसी चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं. अच्छा, वो पूरी पॉइंट रहा. Okay, so point can be defined. I mean, of course, there are various definition of points. Some people may say it's a circle with 0 radius. Then the problem arises, then what is a circle? Now, when you define a circle, then it becomes, a locus of a point. So locus ka matlab hai path. So then it becomes contradictory. So my basic understanding here is a fine dot. Let's say we are talking about a fine dot made by a sharp pencil. Why do I say sharp pencil? Because let us say this is a point, right? Let's say this is a point. This is also a point, let us say, and now out of these 3, which is point?
अच्छा, so this is not a point. अभी जो थर्ड वन बना पॉइंट है इसके ऊपर भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने साबू के बारे में सुना? कितने लोगों ने? साबू साबू चाचा चौधरी के बारे में सुना? नहीं, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तुम सब कुछ पढ़ते पढ़ते नहीं हो। चंपक, चंपक सुना? चंपक नहीं सुना आप? तो ये बहुत पॉपुलर रीडिंग मैगजीन्स ही होती थी, सारे बच्चे पढ़ते थे। तो उसके अंदर वो साबू इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बिग। सो इफ देयर इज अ लार्ज पर्सन हु इज अ बिग पर्सन, उसकी जो पेंसिल होएगी वो थिक होएगी, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसकी पेंसिल ये बहुत शार्प होएगी। नाउ ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, नाउ टेक्निकली ऑल थ्री आर पॉइंट्स विदाउट एनी डाउट, but geometrically speaking, sharper the pencil, closer we are towards the geometric definition of a point. Because now one can argue that, within this point there are so many molecules, and these molecules are made up of atoms, and these atoms are made up of electrons and nucleus. Then this nucleus is made up of neutrons and protons, and then this proton is made up of quarks. So point kahan hai? So that's a ongoing discussion, you can never end it. But for us, we are only talking about the physical being. So sharper the pencil, closer we are towards the geometric definition of a point. That's how you understand the point. That's all. Nothing, no big deal in this. So set of points extending to infinity. So if you have set of points, right, and you extend this set of points to infinity, then it is known as a line. So how is line defined? Set of points extending to infinity is known as a line. Now this, whenever we say line, so the idea is there will always be two arrows. The line will always extend to infinity. We use the word line normal in our normal language, but we don't mean line. We always mean what we call as a line segment. हम बोलते तो line है, लेकिन हमारा मतलब क्या होता है? line segment. तो how is line segment different from line? Segment का मतलब होता है part, टुकड़ा. So when you have a, so let's say we have this line, right? And you fix 2 points here, A and B. So it's a part of a line. So this, whenever you fix 2 points, it is always represented by capital alphabets. And so this becomes, this portion within the line is known as line segment, right? Now line is always represented by small alphabets. That's the standard nomenclature of line. Points are always represented by capital alphabets. So if a line is fixed between 2 points, we call it a line segment. Now, if a line, is fixed at 1 point and extending to another point, let's say, then we call this as we call it as a ray. So we have line segment and ray. So whenever we study all this, we also study something known as a plane also. Since we are talking about a plane geometry, we also need to define what is a plane. So how do you define a plane? It's a surface. It's a two-dimensional surface, basically. What kind of surface? Two-dimensional. Now, which is extending to infinity in all the directions. That is the basic understanding. It extending to infinity. It is extending to infinity in all directions. Why do I say all directions? Okay, now let's say this screen or this board, right? Now this board is limited by the boundary, 4-sided boundary. Upar bhi boundary hai, idhar bhi boundary, left puri boundary hai. So the board is having a limitation. It is a 2-dimensional board. It is having a limitation. But if you extend the board infinity up, infinity down, infinity right, infinity left, that is what you call as a plane. No, that is 3-dimension. So it's a 2-dimension. Book dena. Now this is a plane, but it is not a plane. Technical definition not plane because it is having a boundary. This copy is having limited. इतना ही तो है. अगर मैं इसको ऊपर imaginary ऊपर लेके चला जाऊं, imaginary नीचे लेके चला जाऊं, imaginary left और imaginary right, such a representation is known as a plane. ये length है, ये breadth समझ लो, ये 2 dimension है. अब इसको ऐसे देखोगी तो इसमें height भी आ जाएगी, तो ये 3 dimension हो गया.
हाँ तो मेजर नहीं कर सकते प्लेन, जमीन को फ्लैट जमीन मान लो, रोड नहीं लगो कुछ भी एक फ्लैट है, ऐसे एक्सटेंड कर दो इन्फिनिटी तक पूरा सारी तरफ, सर दैट्स अ प्लेन। फाइनाइटली बढ़ती जा रही है हाँ हमारे पेज निकाल दिया उसका प्लेन हो गया और मतलब इस हिसाब से पकड़ रहे हैं तो वो पेज निकले और पूरा मेंशन निकलेगा हाँ तो ठीक है, उसमें नहीं तो और डायरेक्शन पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस सारी केमिस्ट्री कितना बनानी मैं वैसे पूछ रहा हूं नहीं। Now when you say all sides, right, my interpretation for you to tell you all side is there is something known as up and there is something known as a down. एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर की तरफ कुछ जगह है और कुछ नीचे की तरफ जगह है, लेकिन अगर बोर्ड इनफाइनाइट है तो ना उसका कुछ ऊपर है ना नीचे है। भाई ये बोर्ड है, मैं कहता हूँ बोर्ड के ऊपर जगह है और मैं कहता हूँ बोर्ड के नीचे भी जगह है, कहता हूँ ना, तो ऊपर और नीचे दो चीजें हो गई। लेकिन अगर ये बोर्ड इनफाइनाइट होता तो मैं कुछ कह सकता था कि ऊपर है या नीचे है? नहीं कह सकता। लेकिन अभी समझाने के लिए कि इनफाइनाइट बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, तो मुझे ऊपर और नीचे बताना पड़ेगा, उसकी अंग्रेजी है ऑल डायरेक्शंस, दैट्स ऑल। अगर इस बोर्ड को मैं राइट बोलता हूँ, राइट में बढ़ा दो और लेफ्ट में बढ़ा दो, इसका क्या मतलब है? बोर्ड लिमिटेड है, उसके राइट साइड में जगह है, उसके लेफ्ट साइड में जगह है। अगर मैंने इस बोर्ड को ऐसे इनफाइनाइटली बढ़ा दिया तो ना उसके राइट में कुछ है ना लेफ्ट में कुछ है, फिर तो बेईमानी होगी ना सारी बातें। तो एक्सप्लेन कैसे की जाएगी? एक्सप्लेन तो ऐसे ही करी जाएगी कि सारी तरफ यानी हमारी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है डायरेक्शन की, उसके सेंस में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्लेन, दैट्स ऑल। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी डिफाइन प्लेन। टू डायमेंशनल स्मूथ सरफेस एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी इन ऑल द डायरेक्शंस इज नोन एज अ प्लेन। Then when we come down to here, line segment and ray, we also understand the basics of what we call as angles. हम उसके साथ ही कुछ और भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? Angles. So how do you define angle? दो रेजेस का कॉमन पॉइंट सर, तो क्या आएगा? एंगल। Go two rays having a common origin. किसी का भी origin अगर common है, ठीक है, two rays having a common origin is known as an angle. इसको angle बोलते हैं। उसी तरीके से एक और डेफिनेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन ओवर अनदर लाइन। मान लेते हैं एक लाइन ये है मेरे पास और दूसरी लाइन मान लेते हैं ये है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंक्लिनेशन ऑफ वन, इंक्लिनेशन यानी झुकाव, ये लाइन है, ये दूसरी लाइन, इसका झुकाव। इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज एंगल। ठीक है, नाउ दिस एंगल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एंगल ए, सिर्फ एंगल ए बोल सकते हैं। एंड लेट अस से, यू नो, इंस्टेड ऑफ रे, इफ यू वर टू हैव अ पॉइंट आल्सो, देन वी वुड से एंगल बी AC. This can be also said as angle CAB, of course, which can simply be said as angle A. That's how you understand angles, right? Inclination of one line over another line or two rays having a common origin is also defined as an angle. Now we need to know what are the different types of angles that we have studied. हमने सारा कुछ वैसे पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो different types of angles क्या है जो हमने पढ़ाई करी है वो बताओ। Sir, 4 types of angle: acute, obtuse, reflex, and straight angle. So what is an acute angle? 90 degree small वाला। Less than 90. तो मान लेते हैं ये एंगल है, तो लेस देन 90 हो गया। हाँ, 0 to 90. 0 to 90. Any angle which lies between 0 to 90 is known as an acute angle. Then right angle, क्या होता है right angle? Exactly 90 degrees is known as a right angle. फिर क्या आता है? Obtuse angle. क्या होता है? ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 180 से छोटा। 180। ये वाला क्या बन जाएगा? 180 डिग्री एंगल क्या बन जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल। उसके बाद क्या बनता है? रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा सर। 180 से बड़ा और
360 छोटा। 360 से छोटा, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। हाँ, वो सारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। फिर 360 डिग्री को एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, बिंदी और एक गोला। ठीक है, तुमने ये सब पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये बेसिक मतलब है इनका नॉमेनक्लेचर। और कौन से एंगल सुने हमने? और कौन से एंगल सुने? तो सुने होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स तो कर लिया। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई एक ऐसे रोटेशन। है, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है हमेशा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और कौन से एंगल सुने? वो पैरेलल लाइंस होते हैं, अभी आएंगे। उसके अलावा बताओ पहले। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एज है तो 3 रेज है तो 2 एंगल्स बने हुए दोनों हैं होते साथ हैं, में। जो तुम कह रही हो वो भी सही है, और एक और भी होता है। ओके, नाउ एडजेसेंट एंगल की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है, टू एंगल्स विच हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, इसमें क्या है? कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन आर्म एंड वन एंगल is not a part of other angle। ये तीनों कंडीशंस होती हैं एक्चुअली तो। हाँ, अभी गर्मियां देखते हैं इसका भी क्या सीन है। तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं मेरे पास एक एंगल ये है, ठीक है, ये मान लेते हैं कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो मेरा दूसरा एंगल मैं ये बना सकता हूं, और मान लेते हैं मैंने तीसरा एंगल ये बना लिया। तो अब क्या है कि ये वर्टेक्स हो गया, अगर मैंने इसको कॉमन आर्म मान लिया, मान लेते हैं, तो एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल, बट क्या ये एडजेसेंट है? नहीं, क्योंकि वन एंगल इज नॉट ए पार्ट ऑफ अनदर एंगल। तो यहाँ पे दूसरा एंगल पार्ट बन गया, तो ये वाला नहीं बनेगा मेरा। एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये, बाजू बाजू वाले एंगल जो होते हैं वो मेरे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये वाली मेरी कॉमन आर्म हो गई। ठीक है, ये कॉमन आर्म हो गई, और एक एंगल दूसरे एंगल का पार्ट नहीं है, इसको हम एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब बगल में बेसिकली। तो जो बगल बगल वाले एंगल होते हैं हम उसको एडजेसेंट एंगल के नाम से जानते हैं। टेक्निकली कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, वन एंगल इज नॉट ए पार्ट ऑफ अनदर एंगल, दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके अलावा तो सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बोलेंगे सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, लेट्स से मान लेते हैं हमारे पास एक ये है, मान लेते हैं लाइन है, ठीक है, एंड यू ड्रॉ दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा and this angle is beta. When sum of the two angles is 90 degree, we call it as a complementary angles. हम क्या बोलते हैं इसको? Sum of two angle is 90 degree is known as a complementary angle. If sum of two angles is 180 degree, then you call it as a A plus B is equal to 180 degree. It is known as supplementary angle. समझ में आ रहा है? Now there's a question here. Now this is known as supplementary angle, and this is also known as linear pair angle. This is representing what we call as a linear pair angles. So what is a linear pair? Linear pair, when the non-common arms will form a straight line, then will it become a linear pair. Non-common arms, अभी समझा देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। Non-common arms
will form straight line. क्या मतलब है? जब एडजेसेंट एंगल्स में देखो, ये एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है। जब नॉन कॉमन आर्म, जैसे यहाँ पे ये नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है मान लेते हैं, ये नॉन कॉमन आर्म है। व्हेन नॉन कॉमन आर्म्स विल फॉर्म स्ट्रेट लाइन, वी कॉल इट एज अ लीनियर पेयर एंगल. But this linear pair angle will always be supplementary. So what is the difference between a linear pair angle and a supplementary angle? That becomes a question. Now, the understanding here is linear pair angle will always be a subset of supplementary angle. That means all linear pair angles are always going to be supplementary angle, but all supplementary angle may not be linear pair angle. मतलब क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री, ये लीनियर पेयर है और सप्लीमेंट्री है। लेकिन मान लेते हैं मैंने आपको एक ये फिगर बना के दे दी, मान लेते हैं मैंने इसके अंदर ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ऑफ कोर्स हम बाद में देखेंगे इसको, मान लेते हैं इट इज नोन एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इनका सम 180 होता है। इनका सम मान लेते हैं ये P है, ये Q है, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या बनेगी? 180। तो क्या ये सप्लीमेंट्री है? यस, सप्लीमेंट, बट क्या लीनियर पेयर है? नहीं है। इसका मतलब है अगर कोई भी दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो लीनियर पेयर होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो लीनियर पेयर है तो सप्लीमेंट्री होगा, ये गारंटीड है। इसका ये मतलब है। आ रही बात समझ में? ओके, तो हमने लीनियर पेयर देख लिया, सप्लीमेंट्री देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री देख लिया। अल्टरनेट एंगल रह गया सर। है अल्टरनेट एंगल्स, एडजेसेंट भी है। हाँ, ऑल्टरनेट वो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, अभी हम उस पे आएंगे, जो भी उसमें और भी कई सारी चीजें हैं, बट फिलहाल हम इसमें देख लेते हैं। और कोई एंगल्स बच के क्या? ऑल्टरनेट वगैरह भी हम देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वी हैव कवर्ड ऑल दोस एंगल्स, और तो कुछ नहीं होता। एडजेसेंट, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। हाँ, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं फिगर्स के अंदर हम देखते हैं, अभी समझेंगे क्या इंटीरियर क्या एक्सटीरियर होता है। जैसे कि एक ट्राइंगल बनाता हूं, मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं मेरे पास ट्राइंगल है ABC, तो जो अंदर वाले एंगल्स हैं ये क्या है? इंटीरियर। इसका एक्सटीरियर एंगल क्या ये होगा? नहीं, आइदर यू एक्सटेंड दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यू एक्सटेंड दिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल बच गया ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। हाँ, ये पक्का लीनियर पेयर तो होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आप कहते हो सर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको और इसको। उस केस में ये एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, तो ये अंदर वाले मेरे हो गए इंटीरियर एंगल और ये बाहर वाला मेरा हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंड इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर will always be supplementary and it will always be a linear pair. Now this is true for all figures. It is not that I am talking about only triangle. If you take a square, if you take a pentagon, hexagon, octagon, interior plus exterior will always be a straight line and interior plus exterior will always be 180 degree. That means they will always be supplementary. यहां तक बात समझ में आती? तो ये हमने बेसिक एंगल्स का रिवीजन किया है फंडामेंटली. दैट्स ऑल वी हैव डन, राइट? Then we come to something known as concept of parallel lines. क्या होती है parallel lines? Two lines which अगर ऐसे दो लाइन बनाई तो क्या इंटरसेक्ट करेगी? तो ये भी तो पैरेलल नहीं है. अच्छा, इनका गैप में स्ट्रेट, अच्छा मान लो ये एक सीधी लाइन है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, और एक सीधी लाइन ये है, सीधी है ना बिल्कुल ही, सेम डायरेक्शन में सर जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है वैसे. हाँ, वो तो मेरे को पता है, मीट ये नहीं करेगी ना, कभी भी मीट नहीं करेगी. क्यों 3D? हाँ, मत देखो ऊपर से, बीच में से देखो.
हाँ, ये एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा ना अभी, क्योंकि पैरेलल लाइन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डायमेंशन, दैट इज व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन. सो व्हेन 2 लाइंस नेवर मीट, वेयर? इन 2 डायमेंशन. 2 lines, 2 straight lines which never meet, where? In 2 dimension, because in 3 dimension it is possible that they are straight line and they will never meet. It's quite possible. In 3 dimension it is also possible to form a triangle with each angle 90 degree, but it's not possible in 2 dimension. So parallel line is a concept of 2 dimensions. So whenever we say, of course alag-alag definition hai, whenever 2 or more lines which do not meet in a 2 dimension, or they meet, or every point maintains 1-to-1 correspondence between. Now let us say ये दो मेरी 2 लाइंस हैं, ये मान लेते हैं L है, ये M है. Is L parallel to M? No, it is not parallel. क्योंकि तुम्हें दिख रही है बस. ओके, मान लेते हैं ये P है, ये Q है. Is P parallel to Q? ये है. Yes sir. इसलिए ये जो है ना, ये इंडिकेशन है पैरेलल लाइन. डायरेक्शन मैंने तिरछी बना दी तो क्या हो गया? साइन है ये ऐसे, इसको जब तक ऐसा ना हो ना, हम मान नहीं सकते पैरेलल दिख रही है इसलिए पैरेलल नहीं मान लेंगे हम जो एग्जाम में. मान ले मैंने ऐसे खींचा, मान ली ये तेरे को दिख रही है सीधी, ठीक है. अब दिखने का तो क्या है कि मान लो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये बराबर लग रही है. अब तेरे को टेढ़ी लग रही है. लेंथ पूछ रहा हूँ, लगभग बराबर है. अगर मैं तुम्हारी आंखों के आगे ना बनाता ना, फिर तुम्हें पता लगता. एक तो ये कौन सी लाइन बड़ी है? मेरा सर, अभी तो तूने बताया, ये देख बराबर है, यहां से यहां देख ले. और देख कौन सी रही है बड़ी, नीचे वाले. ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं भाई इसको. दिखने में और होने में फर्क होता है, ठीक है. तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो इंडिकेशन है ध्यान रखना इसका एग्जाम में. तुम बोलो सर हमें तो दिख रही थी, क्या बकवास कर रहे हो, स्क्वायर ही तो है ये, आपको दिख नहीं रहा, अंधे हो रखे हो, क्या चक्कर है तुम्हारा? वो भैया 90 डिग्री नहीं बोलेगा तो नहीं है 90 डिग्री. ध्यान रखना इस बात का, बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां लड़ने मत बैठना है. तो दिख तो रहा है, इसमें क्या और क्या हो सकता है, ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ 2 arrows indicating parallelism, right? So in this case now हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, L is parallel to M, ठीक है. वैसे ही मान लेते हैं मेरे पास एक और लाइन है, मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है N, और हमें पता है कि M is parallel to N. Can I say L is parallel to N? Yes, it will follow the transient property, यानी A parallel to B, B parallel to C, C parallel to D. We can always say A is parallel to D. सारी parallelism जो property है वो transfer होती रहती है, तो we can always say L is parallel to N या L parallel to M, M parallel to N, सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी. ये हमारी लाइंस होती है, बेसिक डेफिनेशन है. सो एवरी पॉइंट इन दिस लाइन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑन अनदर लाइन व्हिच विल ऑलवेज मेंटेन अ फिक्स्ड डिस्टेंस. दैट्स हाउ यू आल्सो डिफाइन पैरेलल लाइन, और वी कैन सिंपली से 2 straight lines in 2 dimension which will never meet is known as a parallel lines. समझ में आ रही बात? No. Then when we study parallel line, there is also something known as a transversal. There is a word called transversal. क्या होता है? किन दोनों लाइंस को? 2 पैरेलल लाइंस को जो कोई, अच्छा मान लो मैंने ये लाइन बना दी. क्या चल रहा है भाई, लो सिस्टम. आवाज आ रही है ना ऑनलाइन बच्चों सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Now this is a transversal. Now is it necessary that these lines need to be parallel for it to be transversal, or such a scenario, let's say, this is one of those lines and this is, let's say, another line. Obviously it's not parallel, you can see this in this case, and this is the line which is cutting this line. Right now, is this line a transversal is the question? No, it is also transversal. दो या दो से ज्यादा लाइन को कोई भी जो लाइन काटती है, any line which cuts 2 or more lines is known as a transversal. Now the only problem is we normally study transversal when we are studying parallel lines, and therefore it is fit in our mind that line which cuts parallel lines is known as a transversal. Now any line which cuts 2 or more line is known as a transversal. Under certain circumstances, certain conditions, the lines will become parallel. That conditions we are going to study now. समझ में आ रही है? कोई एक लाइन 2 या 2 से ज्यादा लाइन को जब काटती है तो हम उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं.
ठीक है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस द ट्रांसवर्सल्स the lines will become parallel. That condition we are certainly going to study. सर पैरेलल का साइन है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये कैरो उसी साइड और एक दूसरी साइड, तो पैरेलल वैसे ऐसे देता नहीं है, वो सेम डायरेक्शन में देता है। सर सर अगर ये 2 लाइंस का अगर ओरिजिन सेम हो और फिर भी वो लाइन को कट करे तो भी वो ट्रांसवर्सल रहेगी? हाँ, वो ट्रांसवर्सल रहेगी, क्योंकि एनीवे अगर हम इस लाइन को इनफाइनाइटली लेके जाएंगे तो ये अपने आप कहीं ना कहीं इनफाइनाइटली कट तो करेगी ही करेगी, यस सर। है ना, तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ठीक। ठीक है। Now what are the conditions and what are the angles that are generated when when there's a transversal and then there are, let's say, 2 lines. So let us say these are 2 lines, we don't know whatever these lines are, PQ, let us say, and this is a transversal R. So R will generate 8 angles. Now let me say this angle is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we end up generating 8 angles. Now if you look at angle 1 is certainly equal to angle 4. Without these lines being parallel, this is a standard condition. 1 is equal to 4, angle 2 is equal to angle 3, angle 5 is equal to angle 8, and angle 6 is equal to angle 7. Now these conditions are what you called as vertically. We have already seen this anyway, right? ये हमने already देखा है. Of course, it has really nothing to do with in terms of parallelism or straight lines, just that, you cut any 2 lines or a line, it will generate these angles. Now, then there are certain nomenclature which is given to these angles. कुछ नामकरण किया हुआ है, जैसे कि angle 3 and angle 6. Angle 3 and angle 6 are known as alternate interior angles. very good. Alternate interior एंगल्स। तो ऑल्टरनेट क्यों बोलते हैं और इंटीरियर क्यों बोलते हैं? इंटीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दोनों लाइन है उसके अंदर की तरफ ये दोनों एंगल है। ऑल्टरनेट क्यों बोलते हैं? जो मेरा ट्रांसवर्सल है, एक एंगल इस तरफ है और एक एंगल दूसरी तरफ है, इसलिए हम इसको ऑल्टरनेट बोलते हैं। हाँ, तो 3 and 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वैसे ही 4 and 5 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। समझ में आ रहा है? 3, 6, 4, 5 आर ऑल्टरनेट। रीजन समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट एक इधर, इंटीरियर क्योंकि दोनों लाइन के अंदर है। उसी लॉजिक से 1 और 8 को हम क्या बोल सकते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। सेम लॉजिक से हम 2 और 7 को भी क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आ रही बात समझ में? नामकरण इसका ऐसे है। उसी तरीके से हम 3 और 5, 3,5 को इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड, इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्या मतलब है? इंटीरियर अंदर, को यानी साथी, एक साथ। तो 3 और 5 एक साथ हैं, लाइन के एक तरफ एक साथ है, तो ये को इंटीरियर है। उसी लॉजिक से 4 और 6 भी को इंटीरियर एंगल होंगे। समझ में आ रहा है? 4 और 6 भी को इंटीरियर होंगे। क्लियर है? देन 1 and 7 लॉजिकली क्या होगा? को एक्सटीरियर एंगल। तो दूसरा कौन सा होगा? 2 and 8 क्या होगा मेरा? को एक्सटीरियर। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद अगर हम इन चारों एंगल को देखें, ऊपर वाले को और नीचे चारों एंगल को देखें, समझ में आ रहा है? नाउ इफ यू लुक एट दिस पोजीशन 1, दिस पोजीशन 1 कैन बी मिरर्ड बाय दिस पोजीशन 5। ऊपर वाले सेट में 1 की जो पोजीशन है वो 5 की है, 3 की जो पोजीशन है वो 7 की है, 2 की जो पोजीशन है वो 6 की है, और जो 4 की पोजीशन है वो 8 की है। इसलिए इनको कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्ड करने का क्या मतलब होता है? कि दिस एंगल की जो पोजीशन है किसके सामने रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 5, 3 इज करस्पॉन्डिंग टू 7, 2 इज करस्पॉन्डिंग टू 6 एंड 4 इज करस्पॉन्डिंग टू 8। इसको हम बोलते हैं तो हमारे पास एक ये हो गया,
सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया। तो हमारे पास 5 और अलग अलग तरीके के एंगल्स आ गए, जो सब ऑनलाइन पहले बीच बीच में बोल रहे थे ना, ऑल्टरनेट है, ये है, वो है, ये तो सारे के सारे हम ऑर्गेनाइज सेंस में हमने यहाँ पे इसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब ये वर्टिकली वाला इसका पार्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो तो एनीवे कोई भी 2 लाइन खींचोगे तो बन जाएगी। तो ये 5 कंडीशंस है, ये इनका नामकरण है। क्वेश्चन ये है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वी कैन क्लेम दैट द लाइंस आर पैरेलल। ऐसा क्या हो, अभी क्या है, लाइंस पैरेलल नहीं है, अभी तो सिर्फ ये नामकरण है, कोई भी 2 लाइनें हैं और हमें दे दिया। ऐसी क्या कंडीशन पैदा हो जाए या ऐसी क्या कंडीशन हम करें कि ये लाइंस दोनों पैरेलल हो जाएं? जो इन Sum 180 degree. उसका सम होगा, है जो Sum इंटीग्रल 180 एंगल्स degree. होंगे उसका सम। ओके, नाउ इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? 5 कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, 5 लाइंस हैं। इन 5 में से कोई भी एक पकड़ते हैं पहले हम, 5 में से कोई भी एक, जैसे कि हम पकड़ते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मान पहला वाला। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, हमने क्या प्रूव कर दिया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। इक्वल होने में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? इक्वल मान लेते हैं। तो इक्वल में कौन सा, 3, 6 या 4, 5, ये देखना है। दोनों में से कोई भी एक हो जाए, चाहे आप ये प्रूव कर दें कि 3 = 6 प्रूव कर दें, या आप ये प्रूव कर दें 4 = 5, दोनों में से अगर आपने एक भी बात प्रूव कर दी, देन यू कैन से कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड देयरफॉर यू कैन से दैट द लाइंस विल बी पैरेलल। पहली कंडीशन में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, उन दोनों पॉसिबिलिटी में से आप कोई भी एक पॉसिबिलिटी को प्रूव कर देंगे तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि दोनों लाइंस क्या है मेरी, पैरेलल। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर आपने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब कौन सा, 1 = 8 या 2 = 7, दोनों में से, ऑल्टरनेट इंटीरियर में 2 पॉसिबिलिटी हैं, दोनों में से किसी भी एक पॉसिबिलिटी को अगर आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगी। दैट मींस इफ यू प्रूव 1 = 8 और 2 = 7, यू कैन क्लेम दैट द लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक, उसी तरीके से इफ यू हैपन टू प्रूव 3 + 5 or 4 + 6 is 180 degree, that means if you prove that these 2 angles are supplementary, even then we can claim that the lines are parallel. That means अगर आपने ये कह दिया कि इन दोनों का सम अगर 180 हो जाता है, या फिर 4 + 6 का सम 180 डिग्री हो जाता है, that means we are proving that co-interior angles are supplementary, therefore the lines will be parallel. ठीक, नहीं, 3 का मतलब मान लो 360 हो जाए और 5 150 हो जाए, तो 3 + 5 30 + 150 180 हो जाएगा, तभी होगा जब ये लाइन पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। उसी तरीके से इफ यू हैपन टू प्रूव 1 + 7 और 2 + 8 is supplementary, even then we can claim that the lines are parallel. समझ में आ रहा है? अगर हम ये प्रूव कर पाए कि 1 + 7 is 180 डिग्री और 2 + 8 is 180 degree, even then the lines will be parallel. Fifth, if you able to prove corresponding angles are equal, अगर हम ये प्रूव कर पाए कि corresponding angles क्या है, equal, तो कौन से equal? 4 हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इन चारों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी को अगर हम प्रूव कर दें, इन चारों में से किसी भी एक पॉसिबिलिटी को हम प्रूव कर दें, क्या मतलब है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया 1 = 5 या फिर 3 = 7 या फिर 2 = 6 और 4 = 8, if you happen to prove any of these 2 angles to be equal, we can claim that the lines will be parallel. तो इन 5 कंडीशंस, 5 कंडीशन, इनमें से हमें कोई भी एक कंडीशन प्रूव करनी है। उस एक कंडीशंस में भी
जो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं उसमें से एक ही पॉसिबिलिटी प्रूव करनी है, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हाँ जी, ऑनलाइन, आर वी गेटिंग दिस कंप्लीटली? यस सर। यस, ध्रुव, यश, आरुल, यस सर। अश्विंदर, Yes, sir. निशु, वीरेन, ये कौन है, वीरेन? हाँ Yes, sir. ठीक है, चलो, गुड। नाउ if you say this is understood, then the converse is also true. What does it mean? The converse is also true. That means अभी तो क्या था, अभी हमको ये नहीं पता था कि लाइंस पैरेलल हैं, हमें इनमें से कोई एक बात प्रूव करनी थी कि ये लाइंस उसकी वजह से पैरेलल है। लेकिन अगर हमें पता है कि लाइंस पैरेलल हैं, या आपने प्रूव कर दी कि लाइंस पैरेलल हैं, if lines are parallel, then all these 5 conditions will become true, and every case within these each condition will also become true. What does it mean? It means if the lines are parallel, alternate interior angles are equal. That means 3 is equal to 6 and 4 is equal to 5. And alternate exterior angles are also equal, which means 1 is equal to 8 and 2 is equal to 7, which also means co-interior angles are supplementary. That means 3 plus 5 is equal to 180 and 4 plus 6 is equal to 180. And co-exterior angles are also supplementary, which means 1 plus 7 is equal to 180 degree and 2 plus 8 is equal to 180 degree. And corresponding angles are equal. That means angle 1 is equal to angle 5, angle 3 is equal to angle 7, angle 2 is equal to angle 6, and angle 4 is equal to angle 8. Any question in parallel lines would require you to have this understanding, without which you will not be able to solve this question. As simple as that. ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, अगर आपको ये याद होंगी तो आपका पैरेलल लाइन का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसी के अंदर आएगा जो भी कुछ आएगा। और सिंगल प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन उम्मीद मत करना, 5, 6, 3, 4 इकट्ठी लगेंगी, ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। सारी सच है, हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रू है, ठीक है, ओके। देन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये क्या है, now if you are having 3 or more parallel lines, makes intercept on transversal in certain proportion, then they will make the intercepts in the same proportion on any other transversal as well. Now this is important understanding. It says if you have 2 or more parallel lines, let's say this is a line, let's say these are parallel lines. So these parallel lines are making some intercept on this line. Let's say this is a transversal. Intercept का मतलब है ये मान लो लाइन है और ये पैरेलल लाइंस को कहीं कट कर रही हैं, समझ में आ रहा है? तो कट कर रही हैं तो मान लेते हैं पॉइंट आ गया ए बी सी, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास एक तिरछी लाइन है, थोड़ी सी और तिरछी लाइन है ऐसे, ये भी एक तरह का
ट्रांसवर्सल है मान लेते हैं, ये वही पैरेलल लाइंस है, ये भी कट करेगी मान लेते हैं डी ई एफ। अब ये बात तो दिख रही है कि ए बी की जो लेंथ है और डीई की लेंथ है वो तो सेम तो नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे लाइन तिरछी होती जाएगी उस पैरेलल लाइन के बीच में जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम इसका रेशियो देखेंगे ना, ए बी मान लेते हैं, अपन इसको ले लेते हैं, ए बी की लेंथ अपॉन बी सी की लेंथ, इसका रेशियो ले लेते हैं, इज सेम एज डीई की लेंथ अपॉन ई एफ की लेंथ। कुछ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ते थे हम 10वीं में। The ratio of the intercepts made by the parallel line will be same on both the intercepts. ठीक है, तो जो इंटरसेप्ट है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट का जो रेशियो है ऑन दिस ए बी और सी डी, इसका जो रेशियो है इज सेम एज द इंटरसेप्ट, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द अदर ट्रांसवर्सल on the same parallel line, or the intercepts made by the parallel line on the other transversal will also be same. यहीं से बेसिकली इसी का एप्लीकेशन होता है जिसको हम बीपीटी बोलते हैं, नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम हम पढ़ते थे ट्राइंगल में। मिड पॉइंट ऑफ टू लाइंस विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड विल बी हाफ ऑफ इट, राइट? वी स्टडीड दिस, ऑफ कोर्स कुछ की और प्रॉपर्टी वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले ट्राइंगल्स पढ़ना पड़ेगा। बट दिस इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ पैरेलल लाइंस एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ lines, straight lines and parallel lines. Then we come with a closed figure. So far it is just an open figure that we have seen. Now we come down to the closed figure. The simplest closed figure or three-sided closed figure is what we call as a triangles. So we'll start with understanding of triangles. बोलो यहां तक कुछ समझ में आना है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अभी तक तो नहीं है, तो वेरी गुड है। तो एक ट्राइंगल, ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है एंगल्स, तो 3 एंगल वाली जो फिगर है हम उसको ट्राइंगल बोलते हैं। जहां पे 2 लाइनें मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये क्या है मेरा? वर्टेक्स। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। द लेंथ विच इज ऑपोजिट टू द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स स्मॉल अल्फाबेट। हालांकि आप कुछ और लिख दोगे तो कोई फांसी नहीं चढ़ाएगा हमें, लेकिन जो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है वो यही है कि जो वर्टेक्स है उसके सामने वाली जो साइड है उसको हम उसकी स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेंथ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स, वर्टेक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। हैं? वर्टेक्स जहां पे 2 लाइनें मीट करती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, कॉर्नर जो होता है। और उसके जो सामने वाली जो लेंथ है उसको हम स्मॉल अल्फाबेट, यानी यहाँ कैपिटल ए है तो ये वाला स्मॉल ए होएगा, ये कैपिटल बी है वर्टेक्स तो ये वाला स्मॉल बी होगा, ठीक है। और ये इंटीरियर एंगल है जो हमने अभी पढ़ा था। तो एक चीज आती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, कैसे होगा, कैसे कह सकते हो? हाँ मतलब कैसे पता ये ऐसे 180 डिग्री है? तो अगर सर्कल है वैसे तो कोई, इसे एक्सटेंड करेंगे इन रेज को, इसको सर उनका इन जो ये रेज हैं जो हमारी 3 लाइंस हैं, हाँ, उनको हम एक्सटेंड करेंगे सारी साइड हाँ, से, हाँ, फिर उसके बाद एक वो 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, क्यों? दैट आर सप्लीमेंट्री अच्छा। एंगल्स, तो हम उनका सम करके देन वी कम अप टू बी। अभी मैंने कुछ पढ़ाया था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। 60 60 60 ये किसने कह दिया? कोई जरूरी थोड़ी ना 60 हो। वो जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है ना, वो इसका एप्लीकेशन है जो मैं भी पूछा हूँ। मैं तो इसलिए पूछा हूँ, हालांकि कोई ऐसा पूछने का तुक नहीं है, सबने पढ़ाई है 180 डिग्री। जस्ट नाउ वी स्टडीड पैरेलल लाइंस में, इसलिए पूछ रहा था आपसे। ना क्या हुआ? ये मैंने लाइन बना दी। दिस लाइन इज बाई कंस्ट्रक्शन पैरेलल टू दिस लाइन। बनाई तो जा ही सकती है, कोई भी एक लाइन है उसके पैरेलल बनाई जा सकती है। उस केस में ए बी क्या होगा? ट्रांसवर्सल
और अभी अभी क्या पढ़ा था आपने? क्या ये इसका क्या मतलब है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी एंड दिस विल बी ऑल्सो बिकम बी। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। उसी तरीके से AC जो है वो भी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल C है तो ये भी एंगल। नाउ बाय कंस्ट्रक्शन दिस वाज अ स्ट्रेट लाइन। अभी अभी हमने देखा था स्ट्रेट लाइन एंगल इज 180 डिग्री, तो दैट मींस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। उसको रीअरेंज कर दो तो एंगल A प्लस B प्लस C 180 डिग्री आ गया, इसलिए 180 डिग्री। ठीक है, अब जो तुम बता रहे हो ना एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल सम ऑफ ऑल्टरनेट, वो इसका एप्लीकेशन है। कैसे इसका एप्लीकेशन है? इसका एप्लीकेशन ऐसे है, ऐसे मान लो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको मान लो मैंने बोला एंगल E। अब बाय ऑब्जर्वेशन आप ये देख सकते हो कि एंगल C, आप देख सकते हो कि एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन स्ट्रेट लाइन। और हमें ये पता है एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल A इज ऑल्सो 180 डिग्री। क्यों? अभी अभी प्रूफ किया है। इन दोनों को अगर अपन इक्वेट कर दें तो क्या बनेगा? एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल A। C और C कट जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो? एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। सो दिस इज नोन एज, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम। ऑनलाइन तो नजर आ रहा है सबको, तुम्हें नहीं आ रहा? अभी मैं करता हूँ, खोल लो ऑनलाइन, नहीं तो जब तक वो चलाता है जनरेटर का जुगाड़। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रहा है? अब ये कुछ नया कुछ नहीं है इसमें, इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज, दैट्स ऑल। क्या हुआ, ट्रिप ट्रिप कर गया क्या? आवाज कहाँ से आ रही है? बंद कर देना, बाकी सब पंखे पंखे बंद कर देगा इन्वर्टर पे है तो। सब जगह कर देना। अच्छा उधर है क्या? मैं कहाँ? इन्वर्टर पे है? तो जाते हैं वैसे। कोई नहीं, चल। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? तो देख ही नहीं रहा अभी। उधर से ऑफ करें ना, इधर से। हाँ हाँ, क्योंकि बैठ के सुन। ओके चलो। सो हाँ वीरेन बताओ। You want to ask something? Ask me. अनमोल कुछ पूछ। हाँ बोलो। कहाँ है अनमोल? यहाँ आएगा। तू क्या है, बंद कर उसको। हाँ वीरेन बोलो। देखो बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया। अच्छा बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है ठीक है। ओके नाउ, okay so this was one of those properties, exterior angle is equal to sum of alternate interior angles and क्या ये समझ में आ गया? E is equal to A plus B। ओके, E plus सर C। आवाज दोबारा दोहराने लगी सर, किसी और ने बात कर रखे क्या माइक? बंद करो यहाँ पे ना, वहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है, बंद कर लो सब लोग, लॉग आउट करो इसमें। कर दिया? हाँ वीरेन तुम भी अपना उसको करो। हाँ हो गया, ठीक है। नाउ मैं ये कह रहा था E प्लस सी स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री है। और अभी अभी हमने देखा C प्लस B प्लस A 180 डिग्री, तीनों एंगल का ट्राइंगल है 180 डिग्री। तो 180 इज इक्वल टू 180 होएगा, यानी LHS इज इक्वल टू ये LHS के बराबर होगा। E प्लस सी, ऊपर वाला E प्लस सी यहाँ लिख दिया, ABC यहाँ लिख दिया, दोनों तरफ CC कॉमन है, कैंसिल कर दिया। तो E की वैल्यू क्या आ गई? A प्लस B। तो यानी ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ग्रीन वाला जो नजर आ रहा है, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है,
तो टोटल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ ऑल्ट, इसी तरीके से हम सभी के लिए प्रूव कर सकते हैं. सो बट दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. नाउ सर ए और बी को इंटीरियर एंगल्स नहीं आएंगे? ए और बी हाँ कोई इंटीरियर एंगल होंगे, लेकिन पूरा ए नहीं होगा ना. ए ये दोनों होंगे. देखो अगर कोई इंटीरियर की बात करोगी तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं फिर आपको. ये अपना ट्रांसवर्सल मान लेते हैं. ठीक है, बाहर खींच लिया मैंने, ये ट्रांसवर्सल है. और ये वाली जो अपनी लाइन है इसको मैंने बाहर खींच लिया. तो कोई इंटीरियर एक तो ये वाला एंगल है और ये पूरा एंगल है, ये कोई इंटीरियर है. समझ में आ रहा है ये वाला. तो सिर्फ ए नहीं है, ए के बाद ये जो एक्स्ट्रा वाला है ना, ये और ये, दिस इज को इंटीरियर. तो ए और बी को इंटीरियर नहीं होगा. ओके. ठीक है. ओके. Now, depending on the angles and depending on the length of the triangles, there are certain classifications of triangles that we need to study. ठीक है, ये basic characteristics है triangle की. Now, depending on the length classification हम देख लेते हैं. किस बेसिस पे है? लेंथ. लेंथ का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी मान लेते हैं तीनों साइड बराबर है, उसको क्या बोलते हैं? हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, और फिर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो हम उसको स्केलन के नाम से जानते हैं. ठीक, तो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन. ठीक है. हाँ, नाउ ये तो लेंथ के बेसिस पे है. तो अगर हम एंगल्स के बेसिस पे लेते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है जिसके अंदर तीनों एंगल लेस देन 90 होते हैं. ऑल एंगल्स लेस देन 90, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. अच्छा, एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसमें वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, तो वन एंगल 90, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है. और अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल मोर देन 90 हो तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है. तो वन एंगल, दो एंगल मोर देन 90 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो टोटल सम है वही 180 है, तो दो एंगल 90 से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. अब अगर हम राइट एंगल की बात करते हैं तो मान लेते हैं मेरे पास ए बी सी है, तो ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये सी बनेगा. देयर इज समथिंग नोन एज अ पाइथागोरस थ्योरम व्हिच सेज बी स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus c square. So that is how you know, if the sides are given, you come to know that it is a right angle triangle, right? But if you see that b square is greater than a square plus b square, what would you assume? Yes, you would come to know that it is an obtuse angle triangle. And similarly, if you were to have डिपेंड करता है हमने किसको क्या लिखा हुआ है, ए बी सी. अभी हमने बी के सामने लिखा हुआ है, तो ये ए है, ये बी है, तो ये सी है. तो बी के सामने ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल सी है.
So if you know the three sides of the triangle, how do you identify whether the given, given side is a acute angle or obtuse angle? So if one of the square of one of the side is equal to sum of the squares of the other two side, we say it is a right angle triangle. हाँ 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 ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है. Now, since this value is greater, right? B square is greater, मतलब इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो बराबर हो जाएगा. ये क्या माइनस करना पड़ेगा पता है? यहां से मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां पे मैंने परपेंडिकुलर किया डी में, ठीक है. तो अब जो मेरा बनेगा बेसिकली बी जो है वो क्या है, AC स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है. तो बी मेरा क्या है, AC स्क्वायर है. सो आई हैव टू सी AC स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको ना रेड कर लेता हूं. तो जो मेरा AC स्क्वायर है इक्वल टू करने के लिए यहां से कुछ माइनस करना पड़ेगा. A स्क्वायर का मतलब क्या है, A यानी कि BC स्क्वायर. A का मतलब है BC स्क्वायर, C का मतलब है AB स्क्वायर, है ना. अब इसको बराबर करने के लिए ये चूंकि बड़ा है, इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा. माइनस क्या माइनस करूंगा मैं, 2 टाइम्स BC इंटू BD. ये रिजल्ट है. नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है. BC पूरी लेंथ है, BD इज अ प्रोजेक्शन ऑन दिस. सेम काम इसमें होगा. देखो यहां पे मैंने BD को प्रोजेक्शन किया BC पे, यहां पर भी मैं BC के ऊपर एक प्रोजेक्शन लूंगा. मान लेते हैं मैंने इसके ऊपर प्रोजेक्शन लिया, ये प्रोजेक्शन है. किसके ऊपर प्रोजेक्शन है, BC के ऊपर. ये कहाँ है प्रोजेक्शन, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है. उस केस में अब देखो यहां पे ये छोटा है. BC का मतलब क्या है, AC स्क्वायर. B का है AC है ना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू बनाना है तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. A का मतलब क्या है, BC स्क्वायर. ये वाली लेंथ है BC स्क्वायर. C कौन सी लेंथ है मेरी, AB स्क्वायर. इसमें मुझे ऐड करना है. क्या ऐड करना है, 2 टाइम्स जो ऊपर किया था BC किया था, और ये D है BC इंटू BD, सेम थिंग. ये BC इंटू BD. ये याद करना है बस आपने फिलहाल. ये चीज है. तो हमें इतना तो समझ में आता है, पाइथागोरस थ्योरम का ये एक्सटेंशन है. पाइथागोरस थ्योरम हम सबको आता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. अगर वो ऑब्ट्यूस है तो जो पाइथागोरस वाली लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है. देखो ये 90 डिग्री है, तो ये वाली कुछ लेंथ है इसकी, मान लो 90 डिग्री पे, मान लो ये हाथ है, ये 90, ये हाइपोटेन्यूज है. तो अगर ये एंगल बढ़ेगा तभी ऑब्ट्यूस बनेगा, तो ये लेंथ ज्यादा हो जाएगी. और अगर ये 90 डिग्री है, ये लेंथ ये एक्यूट करेंगे हम, तो ये वाली लेंथ छोटी हो जाएगी. ये तो बहुत लॉजिकल बात है. तो ऑब्ट्यूस में B स्क्वायर बड़ा है और एक्यूट में B स्क्वायर छोटा हो गया. अगर ये बड़ा है और हमें इक्वल टू बनाना है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, और अगर ये छोटा हो गया उसको इक्वल करने के लिए तो ऐड करना पड़ेगा. यही बात है. क्या ऐड करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन उसकी लेंथ ऐड करनी पड़ेगी. मतलब ट्वाइस जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है इनटू द जिस पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया गया है किसी एक लेंथ से. यानी कि जैसे यहाँ पे ये प्रोजेक्शन है, मतलब ऊपर से ड्रॉप किया D पे तो BC इंटू BD हो गया. उसी तरीके से ये ड्रॉप किया D पे तो BC इंटू DB, पूरी लेंथ है. BD लिख दिया मैंने, हाँ BC इंटू BD, ठीक है. ये BD की प्रोजेक्शन, ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है, BC इंटू BD. हाँ सर ये यूज कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा सर? अभी तक मैंने देखा नहीं है इसको.
लेकिन ये वाला तो मैंने देखा नहीं है जो अभी मैंने समझाया है आपको, ये वाला इक्वेशन, बट ये वाला लॉजिक कई जगह यूज हुआ है, ग्रेटर वाला। कितना ग्रेटर है वो मैं आपको बस बता रहा हूं फिलहाल। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो, ज्यादातर हर बाकी एग्जाम्स में तो यहीं पे अटक जाता है मामला, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी। अपने वाला थोड़ा सा आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो या तो ऑब्ट्यूज पे जाएगा या एक्यूट पे जाएगा, यहां तक तो जाता है। अब अगर पेपर बहुत टफ हुआ तो वो और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो क्या मतलब है, बोलेगा ठीक है बड़ा तो है, बताओ कितना बड़ा है, या छोटा है तो बताओ कितना छोटा है। वो इसका आंसर ये है, 2bc इंटू bd। हाँ, यहां तक बात समझ में आती है। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंगल्स। तो डिपेंडिंग ऑन लेंथ वी हैव क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन एंगल्स वी हैव क्लासिफिकेशन, एंड डिफरेंट क्राइटेरिया आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है। नाउ let me just take you through a easy one question. Let's say I want you to tell me what are these. Let's say I have three sides. Let's say I have 3, 4, 5. Let's say I have 3, 3, 4. Let's say I have 3, 3, और let's say 3, 3 2 ले लेते हैं, चलो 3, 2, 6 let's say, and let's say I have 1, 2, 3 let's say. I want you to classify this for me. What is the first obviously you understand all three angles are equal, so each angle is 60 degree in this. What is this angle? Triangle. Scalene or any other input on this? Right angle. It's a right angle triangle. 3 square plus 4 square is equal to 5 square. ये तो बहुत स्टैंडर्ड सी बात है, इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। नहीं सुना पाइथागोरियन ट्रिपलेट? 3, 4, 5, इसके सारे मल्टीपल्स 6, 8, 10, 9, 12, 15, ये सारे पाइथागोरियन triplet, and of course we can generate also more Pythagorean triplet. How to generate I'll tell you, but this is the most common Pythagorean triplet, 3, 4, 5. अगला वाला क्या है? Isosceles. अगले वाला क्या है? Triangle not possible. क्यों? Sir, sum of two side must be greater than third side. ओके, तो आप लोग क्या ऑब्ट्यूस एंगल नीचे वाला, ये दोनों ट्राइंगल नहीं बनेंगे। Sum of any two sides should be greater than the third side. अभी सुन, मैं समझ रहा हूं तुमको समझ नहीं आ रहा है। 5th 6th क्लास में एक ट्राइंगल बोलते थे कंस्ट्रक्ट करो। मान लो कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपन 6 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे ले ली। फिर एक प्रकार लेते थे, 3 सेंटीमीटर नापेंगे तो 3 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे। अगर मैं आर्क बनाऊं पूरा तो बीच में काट भी देगा ये, लेकिन हम आर्क कैसे, फिर 2 सेंटीमीटर का आर्क बनाऊं तो यहाँ काट देगा, तो मिलेगा कहाँ पे? ऐसे नहीं बनाते थे कंपास लेके? तो आर्क कहीं मीट करती थी तो लाइन बनाते थे ना। अब अगर मान लो अपन ने ये ले लिया 1, 2, 3, 1, 2, 3 में मान लेते हैं मैंने ये ले लिया AB 3, तो 1 का आर्क कट करूंगा तो यहीं पे आएगा, और इसका आर्क कट करूंगा एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, क्योंकि 3 बन रहा है तो भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी 2 साइड्स हैं उनका सम तीसरी से बड़ा नहीं होगा, तो आर्क स्पेस में कटेगी नहीं, और अगर कटेगी नहीं तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्राइंगल की, सम ऑफ एनी टू साइड। कोई ऐसी 2 साइड, कोई भी 2 साइड पकड़ोगे, तीसरी साइड से अगर बड़ी नहीं ना तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, वो उसी का एक्सटेंशन है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। समझ में आ रहा है? तो ये सम ऑफ any two sides should be ऐसे ही difference of any two side
ये बेसिक ट्रेट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ट्राइंगल की. शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम. Sum of any two sides should be greater than third side. Difference of any two sides should be less than third side. और acute angle, obtuse angle और right angle को निकालने का हमारा तरीका. ठीक. Okay, so this is what we have in terms of classifications, right? Then ये वाला कराऊं या ये वाला कराऊं? अभी पौना घंटा पड़ा है, अभी मैंने क्या दो क्वेश्चन है ही नहीं. क्वेश्चन क्या कराऊं? पूछ लेता हूं, क्वेश्चन कर लो बैठ के. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनसेंटर एंड सर्कम सेंटर इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? करो. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनसेंटर टू सर्कम सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? सर्कम सेंटर. This is the ratio of in radius to circum radius. What is the ratio of in radius to circum radius of an equilateral triangle? अब प्रॉब्लम ये है कि पहले इन रेडियस पढ़ाऊंगा, इन सेंटर पढ़ाऊंगा, सर्कम रेडियस. पता है इन रेडियस होता क्या है? जो भी होता है. ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना रहे हैं अपन. यस सर. अच्छा, ट्रायंगल ऊपर सर्कल बना रहे हैं. मैं तो दोनों पूछा है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस. चलो ये लाइंस में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी बढ़ा देता हूँ, फिर समझ में आएगा तुम्हें. उसको पढ़ाने के लिए ना जो सवाल आएगा उस वहां तक अभी तो हम पहुंचे ही नहीं है. अभी तो बेसिक्स ठीक हो रहे हैं. हाँ, पढ़ा तो सारा ही है. मैं कौन सा 11वीं 12वीं का पढ़ा रहा हूँ? मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ जो आपने कभी ना कभी 6th 7th 8th 9th 10th में जो पढ़ा है वो सब पढ़ा दूंगा 2 दिन 3 दिन में. बस तो 4-5 साल में पढ़ा है ना, वो अपन 3 क्लास में कर लेंगे. बट पॉइंट ये है कि सारा ही वही है, पढ़ा तो है ही कभी ना कभी, ऐसा थोड़ा नहीं पढ़ा. चलो एनीवे, बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी फर्स्ट टेक यू थ्रू congruency of triangles first, then we will see this. What is congruency of triangles? कोई नहीं, आज नहीं करेगा अपना, तो 15-20 मिनट में हो जाएगा, टेंशन ही ना लो. नंबर सिस्टम अच्छा है. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? पहले तो हम ये समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी किसको बोलते हैं. हाँ हाँ, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है आइडेंटिकल फिगर्स. तो आइडेंटिकल फिगर 2 तरह के आइडेंटिकल होती हैं. एक क्या होता है, तो डिजाइन सेम हो और साइज भी सेम हो. फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कहा ये क्या है, ये सर्कल है, और ये क्या है, ये भी सर्कल है. इनका डिजाइन सेम है तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर है. इसकी ये डिजाइन, ये सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का है, ऐसा साइन होता है बिकॉज डिजाइन इज सेम. तो अगर मान लेते हैं मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया इक्विलेटरल और एक बड़ा ट्राइंगल बनाया ये भी इक्विलेटरल, तो दोनों का क्या है, डिजाइन सेम है, तो हम इसको बोलेंगे सिमिलर फिगर्स. लेकिन अगर डिजाइन सेम है और साइज भी सेम है, रंग नहीं बदलेगा इसका. ठीक है, इस केस में हम ये देख रहे हैं कि इसका डिजाइन तो सेम है ही है, डिजाइन सेम, और साइज भी इक्वल है. अगर आप देखोगे कॉन्ग्रुएंसी का ये डिजाइन होता है, इक्वल टू और ऊपर ये, तो इसका मतलब क्या है, सिमिलैरिटी एंड इक्वालिटी. सो इफ द टू थिंग्स विल मीट for any figure, that means their design is same and size is same, we will call that the figures are congruent. That means अगर अपन इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रख दें या इसको इसके ऊपर उठा के रख दें तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पहले वाली कौन सी है और दूसरे वाली कौन सी है. ऑफ कोर्स रंग अलग है तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई टू डिफरेंट. सो दैट इज नोन एज congruency. Now if I have two triangles, for example, right, now
I need to check whether the two triangles are, now if you see in a triangle, let's say, this is a triangle and let's say this is a triangle. Now there are 6 parameters in these two triangles, right? If you observe carefully, this is, let's say, A, B, C, and I have P, I have Q, and I have R. So you see there are 3 angles here and 3 angles here, and there are 3 sides here, 3 sides here. Now, if the two figures are identical, that means if I'm able to put this figure here, then I would say there are 6 parameters, which means angle A should be equal to angle P, angle B should be equal to angle Q, angle C should be equal to angle R, AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AC is equal to PR. तो 6 के 6 पैरामीटर्स हैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के. Now, if I want to see whether the two triangles are congruent or not, for example, do I need to check all the 6 parameters, or are there any limited conditions which, if I check, I can claim that the two triangles are congruent? So there are limited conditions. 6 की 6 बात चेक करने की जरूरत है नहीं. वो लिमिटेड कंडीशन क्या है? सबसे पहली है SSS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम. क्या था इसका मतलब है? 3 sides of one triangle, if it is equal to 3 sides of other triangle, the triangles will certainly be congruent. That means all angles will also be equal. समझ में आ रहा है? SSS congruency theorem. What is the next? Angle side angle. Side angle side. It means, let's say this side is equal to this side, and let's say, this side is equal to this side, and let's say this angle is equal to this angle. Will they be congruent? No. Included angle होना चाहिए. 2 sides and included angle. समझ में आ रहा है? 2 sides included angle नहीं होगा तो फंस जाओगे. जो sides equal हैं उनके बीच वाला जो एंगल है वही बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको SAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम के नाम से जानेंगे. ठीक है? तो अगर हमारा ये वाला ये A है और ये A है, ये मेरा A है, तब जाके मेरा इक्वल टू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. उसके अलावा एंगल साइड एंगल, तो इसके अंदर 2 sides 2 angles एंड इंक्लूडेड साइड है या कोई भी साइड है? इंक्लूडेड साइड है ना, कोई भी साइड है. इसकी कॉरोलरी भी है वही AS, क्योंकि मान लेते हैं ये रेड रेड वाले एंगल बराबर हैं और ये ग्रीन ग्रीन वाले एंगल बराबर हैं. टेक्निकली अगर ये साइड इसके बराबर है तो SAS से तो लग ही जाएगा, बट हम कह रहे हैं कि ये वाली साइड बराबर नहीं है, ये वाली साइड बराबर है. समझ में आ रहा है? लेकिन आप ये बताओ, जब ये 2 एंगल बराबर हैं तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल बराबर, उसमें क्या चक्कर है? अगर ये वाला एंगल बाय डिफॉल्ट बराबर है तो अपने आप ही AS से बन जाएगा. ये क्या फर्क पड़ रहा है कौन सी साइड है? तो समझ में आ रहा है? SAS के अंदर एंगल इंक्लूड होना कंपलसरी है, ASA में इंक्लूड होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो 2 एंगल हमने बराबर लिए हैं उसकी वजह से तीसरा एंगल डेफिनेटली बराबर हो जाएगा. तो अगर मेरा जो साइड है वो बीच वाला साइड नहीं है, बगल वाला साइड है, तो भी बाय डिफॉल्ट वो किसी ना किसी के बीच वाला साइड बन जाएगा. समझ में आ रही है? तो AAS कॉरोलरी भी इसको बोल देते हैं कि भाई 2 एंगल और कोई भी साइड बराबर हो तो हमारा काम चल जाएगा इसके अंदर. ठीक है? उसके अलावा कोई कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम और? कौन सी? AA या AAA सर, वो एंगल है. AAA कोई कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम नहीं होती भाई, चक्कर में मत रहना किसी भी. सर AA क्यों नहीं होगी बताओ? क्योंकि इसलिए नहीं होगी कि मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल कितने हैं? ठीक, ये भी इक्विलेटरल है, इसके कितने हैं? तो क्या दोनों सेम नजर आ रहे हैं आपको? एंगल तो सेम है ना? तो A इज नो कॉन्ग्रुएंसी, इट इज सिमिलैरिटी. ध्यान रखना, गलती मत करना. लेकिन एक और कॉन्ग्रुएंसी होती है जिसको बोलते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम. कहां लगती है ये? राइट एंगल
हाइपोटेन्यूज न्यूज एन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज न्यूज। और साइड, इसका मतलब यह है कि इफ टू राइट एंगल्स आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, then the condition is obviously, since we are talking about right angles, तो obviously right angle तो होगा ही होगा, हाइपोटेन्यूज को बराबर होना ही चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं होगा तो दूसरा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव नहीं कर पाओगे, किसी भी केस में कभी भी नहीं होगा। तो इफ वन ऑफ द बिल्कुल जरूरी है, अभी बताता हूं। तो हाइपोटेन्यूज तो देखो बराबर होना ही चाहिए और 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक। अब या तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, या तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, या तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, या तो ये वाली साइड बराबर हो जाए किसी एक के, यानी कोई भी एक साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू सम साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। कौन सी है पता नहीं, कोई चक्कर नहीं है उसमें। बट आरएचएस कांग्रुएंसी के लिए दीज टू कंडीशंस आर मस्ट व्हाट, 90 डिग्री and hypotenuse. So if 90 degree and hypotenuse are not equal, then it will never be equal. You cannot say that the two triangles are congruent. They must necessarily be equal. That's how it is to be handled. Are you समझ में? So these are what we have in terms of congruency theorems. इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं, सिमिलैरिटी पे आते हैं, जो हम करने वाले हैं अभी। क्लियर है, लेकिन ये भी आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, बाकी एग्जाम्स में तो आता ही है। तो ये कांग्रुएंसी के थ्योरम्स हैं, ये हमारे को पता होने चाहिए, इसके बेसिस में करेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिमिलैरिटी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now we need to now I earlier told you that if the designs are correct, right, if the designs are same, we call it as a similar. Now how do you really make the figure similar? I mean in terms of design, you need to understand this. If there is a triangle, you look through a मैग्नीफाइंग ग्लास, मान लेते हैं ऐसा हमारा एक ट्राइंगल है, उसको बड़ा करेंगे तो पूरा ट्राइंगल बड़ा हो जाएगा, और अगर हम उसको छोटा करेंगे तो पूरा ट्राइंगल छोटा हो जाएगा। जब ये ट्राइंगल बड़ा होगा और छोटा होगा तो सारी साइड उसी प्रोपोर्शन में बड़ी होंगी और उसी प्रोपोर्शन में छोटी होंगी। क्या मतलब है इस बात का, उसी प्रोपोर्शन में बड़ी होना और उसी प्रोपोर्शन में छोटा होना। मान लेते हैं मैंने कहा ये 4 है, 5 है और 6 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको छोटा किया तो ये फिगर छोटी हो जाएगी, मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको छोटा करके आधा कर दिया तो इसका मतलब ये साइज भी आधी होगी और ये साइज भी आधी होगी और ये साइज भी आधी होगी। हाँ, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट, यानी सारी साइड आधी हो जाएगी। यानी अगर रेशियो निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1/2। अगर अपन इसको डबल कर दिया, मान लो बड़ा कर दिया, 3 गुना कर दिया, मान लो ये साइज होगी मेरी 12, 15, 18, ऐसा बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि जो साइज बड़ी हो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर अपन ने कोई फिगर को 3 गुना किया, इसका मतलब क्या है, सारी साइड 3 गुना हुई है। किसी साइड को आपने 1/3 किया, यानी सारी साइड 1/3 हुई है। इसका मतलब जब आप उस साइड का, जैसे ए बी को बड़ा करके अपने ए बी को बड़ा करके मान लेते हैं मैं PQR बनाता हूं, तो अगर अपन देखेंगे ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, PQ को, तो अगर अपन AB अपॉन PQ देखेंगे तो 1:3 आएगा। उसी तरीके से BC क्या बन गया, QR, वो भी 1:3 बनेगा, और AC कितना बन गया, PR, 1:3। इस चीज को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा होगा किताब में, द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है इस प्रोपोर्शनल का, इसका मतलब है जो साइड है उसको अपन या तो बड़ा किया है या छोटा किया, तो उसका रेशियो निकाल लेंगे तो वो फिक्स मिलेगा। तो अगर मेरे पास 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है, तो जैसे कांग्रुएंसी में 6 पैरामीटर्स थे, इसमें भी 6 पैरामीटर, 3 एंगल और 3 साइड। इन प्रोपोर्शनैलिटी द साइड्स आर प्रोपोर्शनल
and angles are equal. एंगल्स प्रोपोर्शनल नहीं है। मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है अपना, तो 180 डिग्री, अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल डबल कर दिया तो क्या एंगल डबल हो जाएगा ना, एंगल तो सेम रहेगा। तो अगर मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल है तो हम क्या बोलते हैं, एंगल ए जो है इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। समझ में आ रहा है? एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू बी सी ये इसका मतलब। तो ये 6 पैरामीटर्स होते हैं दोनों साइड को प्रोपोर्शनल बनाने की। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही अपने को। नाउ क्वेश्चन इज, अगर मुझे दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, मुझे दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, क्या मुझे ये 6 की 6 बातें चाहिए या कुछ लिमिटेड कंडीशन से काम चल जाएगा अपना? लिमिटेड कंडीशन से काम चलेगा। तो लिमिटेड कंडीशंस क्या है? सबसे हाँ, सबसे पहले एस सिमिलैरिटी थ्योरम। मतलब if 3 sides of one triangle are proportional to the 3 sides of other triangle, then the 2 triangles will be similar। हमें एंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है SAS similarity theorem। 2 sides must be proportional and the included angle must be equal। इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, इसमें एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। दोनों साइड जो प्रोपोर्शनल है उसके बीच वाला एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी वो सिमिलर होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स में आता है वो है या तो ए, अगर 2 ए है तो तीसरा ए भी हो जाएगा। भाई 2 एंगल बराबर तो सबसे ज्यादा जो हमको एग्जाम में कैट के अंदर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सिमिलैरिटी के अंदर, वो इस कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे, जहां पे आपको 2 एंगल अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल इक्वल है, देयरफॉर द 2 ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी थ्योरम एज फार एज आवर एग्जाम इज कंसर्न्ड। कैट मेकिंग सेंस? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नो। सो दीज, इसके अंदर इसके अलावा और कोई सिमिलैरिटी थ्योरम नहीं लगता है। नो, लेट मी जस्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन and then we can wrap it up। Let us say it is a 90 degree angle। ठीक है, so and let's say I drop a perpendicular from A to this, which is also 90 degree। How many triangles are there? 3। So let's say this is triangle 1, which is ADB। Let's say this is triangle 2, which is ADC, and let me say this triangle is 3ABC। 3 अलग अलग triangle है, triangle ADB, ADC and ABC। Which 2 triangles are similar and how is the question? ADC और ADC ABC कैसे? जिसमें एक एंगल तो कॉमन हो गया और एक एंगल 90 डिग्री बना दो, थर्ड या एक साइड मान लो। क्यों मानूं? एंगल मान लो। अच्छा, बस यही होगा? मैं 1 2 3 इसलिए लिखा था ताकि बोलने में आसानी हो जाए। आप तीनों सिमिलर हैं? किस, कौन से 2 ट्राइंगल की बात कर रहे हो? 1 और 3? हाँ, ठीक है। हाँ, तो 1 सिमिलर 3 हो गया। और कुछ नहीं है क्या इसमें? और कुछ नहीं बन रहा क्या? क्यों? अच्छा, 3 सिमिलर टू 2 क्यों है?
होगा? एंगल क्यों? सी कॉमन है सर दोनों में। कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, दो ही तो 90-90 नजर आ रहे हैं। मेरे को इतना तो बता ही सकता है, 1 सिमिलर टू 3 है, 2 सिमिलर टू 3 है, 1 सिमिलर टू 2 है, क्या है ये तो बता। अच्छा है, अच्छा तो 3 सिमिलर टू 1, सो 3 सिमिलर टू 2, सो 1 सिमिलर टू 2, मतलब मेरी इसकी शक्ल उससे मिलती है, उसकी शक्ल उससे मिलती है, तो इन दोनों की शक्ल मिलेगी। यही बात है क्या? यही कह रही है, 2 is similar to 3 and 1 is similar to 3, so 1 is similar to 2। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो करेक्ट बात है, बट कैसे? वेरी गुड। तो मान लेते हैं, जैसे सबसे पहले आपने कहा 1 is similar to 3, मान लेते हैं सबसे पहले इसको पकड़ते हैं अपन, ठीक है? यहां तक बात सही है, 1 similar to 3, ठीक। तो 1 क्यों है सिमिलर? 1 में आपने एक 90 डिग्री पकड़ लिया, ठीक है रिमा, बिल्कुल सही। और 3 में आपने 90 डिग्री पकड़ लिया, बाहर वाले में हो गया। और 1 में अपन ने एंगल बी पकड़ लिया, और 3 में भी अपन ने एंगल बी, कॉमन। यही रीजन है, और ये गिवन। तो ये ए हो गया, ये हो गया, तो हम कह सकते हैं ए सिमिलैरिटी लगी। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर ये लग गई है तो साइड प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये है, मान ली मैंने बात आपकी, ये तो साइड प्रोपोर्शनल होगी। बताओ कौन सी किसके प्रोपोर्शनल, लिख के बताओ जरा, लिख के बताओ, भूल जाओगे नहीं तो। एग्जाम में ही प्रॉब्लम आती है, कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल, समझ ही नहीं आता। तो साइड प्रोपोर्शनल हुई ना, बताओ। ए बी इज प्रोपोर्शनल टू 3 होंगी ना। पता नहीं अगर तुम सही कह रहे होते तो एक रिजल्ट निकल के आता है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू तुम बता पा रहे हो? बता पा रही है? बता, ए बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है तेरे इक्वेशन में? अगर समथिंग बाय समथिंग और समथिंग बाय समथिंग और समथिंग बाय समथिंग आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर की वैल्यू बता पाओगे। वो बताते मुझे समझ में आ जाएगा तुमने सही किया भी या नहीं किया है। हाँ जी, ऑनलाइन। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा ना लगा के निकालनी है, स्क्वायर तो आएगा ही नहीं बेटा इसमें, प्लस भी आएगा नहीं ओके चलो मैं समझाता हूँ उसको करना क्या है। जब हमें ऐसा समझ में आ जाए कि ये एंगल बराबर है, ऑफ कोर्स वन वे ऑफ डूइंग इज फिगरिंग आउट कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है और दोनों लेंथ निकालना, बट वंस अगेन दैट आल्सो इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। सो हाउ डू यू डू? आपने जो एंगल इक्वल प्रूफ किया है ना, उसके सामने वाली साइड लो। पहले अपन छोटे वाला ले लेते हैं, 1 में 90 था, 90 के सामने कौन सी साइड है? ए बी। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने कौन सी साइड है? बीसी। तो बीसी के प्रोपोर्शनल होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? छोटे वाला ट्राइंगल अगर आपने ऊपर लिखा है, बड़े वाला नीचे लिखा है, तो 90 के सामने छोटे वाले में ए बी, बड़े वाले में बीसी इज इक्वल टू, एक एंगल हो गया। सेकेंड एंगल कौन सा था अपना? कॉमन बी था। छोटे वाले में बी के सामने कौन सी साइड है? ए डी। बड़े वाले में बी के सामने कौन सी साइड है? ए सी। अब चूंकि दो साइड पता लगी, तीसरी साइड अपने आप पता लग जाएगी।
छोटे वाले ट्राइंगल में अपन ने ए बी ले लिया और एडी ले लिया, तो क्या बच गया? बीडी बच गया। बड़े वाले ट्राइंगल में अपन ने बीसी ले लिया और एसी ले लिया, तो क्या बच गया? ए बी बच गया। अब इन दोनों को देखो, कैन आई से आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई? जो मैं आपसे पूछ रहा था, ये डायरेक्ट रिजल्ट है एक्चुअली। तो ए बी का जो स्क्वायर होता है वो ये छोटा टुकड़ा इंटू ये पूरा टुकड़ा होता है। ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने बताया। इसी लॉजिक से आप मेरे को 2 प्रोपोर्शनल टू 3 का रिजल्ट निकाल के दिखा दो, 2 सिमिलर टू 3। क्या चक्कर है तुम लोगों के? फोन क्यों आ रहे इतने? कभी इसका, फिर कभी इसका, कभी इसका, सब अंबानी बने हुए। हम लोग उसका फिर पीछे। तेरे को कह रहा हूँ तुम। टू सिमिलर टू 3 प्रूफ करो और मुझे रिजल्ट बताओ। ये ले भाई कर, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया बस, और ये 90 और AC कॉमन हो गया, तो हो गया सिमिलर। साइड प्रोपोर्शनल लिख के बता, वो इंपॉर्टेंट है भाई। ये 90 तो वो 90 होगा ही ना, 180 स्ट्रेट लाइन है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। 90 90 और C कॉमन हो गया दोनों में, तो दो एंगल बराबर हो गए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अब साइड प्रोपोर्शनल होंगी, कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है ये निकालना है अपने को। AC स्क्वायर की वैल्यू बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुमने किया भी है नहीं। CB ठीक है यश। AC square is equal to, बिल्कुल। नाउ यू सी इन ट्राइंगल 2, अगर मैं न्यूमरेटर में 2 लिखूं, 2 के सामने 90 है, 90 वाले के सामने AC है, 3 में 90 वाले के सामने BC है, इज इक्वल टू छोटे वाले में ट्राइंगल C के सामने AD है और बड़े वाले में C के सामने AB है। अब छोटे वाले में अपन AD ले चुके हैं और AC ले चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ CD बचा है। बड़े वाले में अपन BC ले चुके हैं और AB ले चुके हैं, तो अपने पास AC बचा है। तो अगर हम इन दोनों को देखें, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को, तो AC स्क्वायर, तो यहां तो समझ में आता है 2 सिमिलर टू 3, 1 सिमिलर टू 3, तो ये भी समझ में आता है 2 सिमिलर टू 3, सॉरी 1 इज सिमिलर टू 2। मैथमेटिकली बताओ कैसे होगा 1 सिमिलर टू 2? नहीं ये तो ठीक है, डिजाइन तो समझ में आ गया। एक का डिजाइन 3 से मिलता है, 2 का डिजाइन भी 3 से मिलता है, तो एक का डिजाइन 2 से मिलेगा ही मिलेगा, लॉजिकल है। सो 1 इज सिमिलर टू 2। अब कैसे? हाँ जैसे ये किया है एंगल वाला वैसे बताओ। 99 कौन सा कॉमन हो गया? 90 90 हो गया, बिल्कुल ठीक बात है।
ये कहाँ कह रहा है कि वो बाइसेक्टर है? ये थोड़ी ना, वो तो दिख भी रहा है, बाइसेक्टर तो नहीं है। इट इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, 45 थोड़ी ना। एक साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो क्या नेसेसरी है जिस एंगल से आएगा उसको भी दो पार्ट्स में, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करें? वो नेसेसरी तब है अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल या आइसोसेलेस है, लेकिन अगर स्केलन है तो नहीं होगा। तो अगर हम जनरल बोलेंगे तो आंसर है ना, लेकिन स्पेसिफिक केस में चेक करेंगे तो 2 केस में हाँ, एक केस में ना। सर एक एंगल डी हो गया 90-90। सर बीसी साइड कॉमन है ना उसमें? ठीक है, तो आगे नहीं, एडी और सिर्फ एडी कॉमन है दोनों में। एबी और एसी प्रोपोर्शनल, एबी और एसी प्रोपोर्शनल। वो कैसे पता तेरे को? सर क्योंकि फर्स्ट और थ्री वो तो पता ही है कि 1 सिमिलर टू 2 है तो सारे ही होंगे, मैं तो प्रूफ पूछ रहा हूँ। एंगल वो 90 के सामने बड़ी बात है, एंगल डी के सामने वाली एसी और एबी कुछ ना, ऐसे धक्का मार रहे हो। चलो लो देखो, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, मान लेते हैं समझाने के लिए। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पूरे 90 में से माइनस करना पड़ेगा। ये ग्रीन वाला एंगल है, 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करना है, तो क्या बचेगा? 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। हो गया 2 एंगल बराबर। दुखी हो रखे इतनी देर से भाई, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो टोटल 90 में से 90 माइनस थीटा करोगे तो थीटा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ भी कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते थे कुछ अलग। अब हो गया। अब ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब हम करते हैं साइड प्रोपोर्शनल। 90 के सामने छोटा 1 और 3 लेते हैं अपन, यहाँ पे 1 सिमिलर टू 2, तो 1 के सामने 90 के सामने क्या ए बी, और इधर 90 के सामने ए सी इज इक्वल टू थीटा के सामने ए डी, और यहाँ थीटा के सामने सी डी। अब इसमें अपन ने ए बी ले लिया, ए डी ले लिया, तो क्या बच गया? बी डी। और इसमें अपन ने ए सी ले लिया और सी डी ले लिया, तो क्या बच गया? ए डी। तो यहां से एक रिजल्ट आएगा, बी डी इंटू सी डी। ये एग्जाम में आता है। अब कैसे आता है मैं समझाता हूँ, और तुम्हें क्या पता होना चाहिए ये समझाता हूँ। ये तो फिगर ऐसे बनी है, ये फिगर एग्जाम में ऐसे नहीं बनी हुई होगी, ये फिगर ऐसी बनी होगी। ये बोलेगा कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। और यहां से हमने एक बनाया इस पे 90 डिग्री, ठीक है। सेम फिगर होगी, घुमा दिया। ये मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 4 है, ठीक है। और ये इस साइड को मान लेते हैं 1:2 में डिवाइड कर रही है। व्हाट इज दिस लेंथ एक्स? ये 1:2 है, हाँ 1:2 नहीं है, क्योंकि टोटल लेंथ ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि ये 3 है 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ये लेंथ 5 हो जाएगी। तो ये टुकड़ा निकालना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बनेगा? अब उसने क्या क्या पूछ लिया? पहले पाइथागोरस थ्योरम की समझ, दूसरी रेशियो निकालने की समझ, और तीसरी ये वाली प्रॉपर्टी। ये तीनों क्वेश्चन होंगे कंबाइंड इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम से इसको एक्चुअल 1x मानोगे तो इसको 2x मानना पड़ेगा, तो 1x प्लस 2x की वैल्यू कितनी बनेगी? 5। सो 3x की वैल्यू कितनी बन रही है? 5। तो x की वैल्यू कितनी बन रही है? 5/3। तो ये कितना बन जाएगा मेरा? 5/3, और ये कितना बन जाएगा? 10/3। अब हमें पता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 इंटू 10/3। x की वैल्यू बनेगी √15/3। ये आंसर है।
अरे 50 है, सॉरी 5 into 10 है ना। ये वही वाला रिजल्ट है मिड पॉइंट वाला, ये देखो AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू DB। ये वाला AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज दिस टुकड़ा इंटू दिस टुकड़ा, ये परपेंडिकुलर है ना, ये AD है, ये AD है, ऐसे समझ कुछ ना निकलता। अच्छा वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस तरह हाँ कर सकते हैं, बट ये रिजल्ट कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो बस दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका ये तरीका है। क्लास चल रही है ग्रुप को, क्लियर है? सो दिस विल टेक केयर ऑफ योर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एंड जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पे ऑब्ट्यूस एक्ट्यूस को पढ़ा था प्लस उसके ऊपर क्वेश्चन। अगली क्लास में हमें जो करना है वो करना है द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस एंड ट्राइंगल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस एंड ट्राइंगल्स, जिसमें हम इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, एपोलोनियस थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये वाली चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट विल टेक केयर ऑफ योर ट्राइंगल्स इन नेक्स्ट क्लास। क्या PDF भेजनी? ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन, क्वेश्चन क्वेरीज? हेलो सर। ठीक है, then that should be all from my Hello, side. hello. Thank you very much and have a nice day. Thank you guys.